جلایا نہیں۔ وہ دم نہیں آیا، اسے معلوم تھا کہ یہ پیالہ میں نے پینا ہی ہے، کیونکہ اس نے باپ کی فرمانبرداری کو پورا کرنا تھا۔ یسوع نے شاگردوں کو کہا، میں باپ سے منت کروں تو فرشتوں کے 12 تمن ابھی موجود کر دے گا۔ اور آپ میں سے کئی جانتے ہیں کہ 12 تمن 1,20,000 کی تعداد ہوتی ہے، اور یہ تعداد کم نہیں۔ یسوع نے اپنے اختیار کو اپنے بچاؤ کے لیے استعمال نہیں کیا۔ پھر آگے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی۔ وہ عورت جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی تھی، عالم کے شرع تو چاہتے تھے کہ یسوع سے سزا دے، کیونکہ شریعت کے مطابق شخص جو ہے، ایسا شخص جو برائی میں پکڑا جاتا تھا، حرام کاری میں پکڑا جاتا تھا، اس کے لیے سزا تھی کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ اور وہاں کے لوگ جو اسے پکڑ کر لائے تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ یسوع اسے مار دینے کا حکم دے۔ لیکن یسوع نے کہا، اے عورت، تیرے گناہ معاف ہوئے، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ یسوع بدکاری سے خوش نہیں ہوتا، لیکن بدکار سے محبت کرتا ہے۔ ہماری بدکاریوں کے تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لاما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر یہ کہا، یہ ایلیا کو پکارتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، اور خدا سروس کی تمجید ہو، آمین۔ اس اندھیرے میں ہم دیکھیں خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کا اس میں محبت بھی ثابت ہوتی ہے۔ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے پہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ اس وقت گرمی اتنی شدت کی تھی کہ جب ہمارا خدا یسوع مسیح صلیب پر لٹکائے گئے تھے، انہیں چھیڑا گیا تھا، تو جب دھوپ ان کے جسم پر پڑتی تو پسینہ اور خون جب آپس میں گوشت میں لگتے تو ایک دردناک ناقابل برداشت درد ہوتا ہے۔ اور اس چیز کو مد نظر سورج نے یہ دیکھا کہ میرا خالق اور مالک، مجھے بنانے والا جو صلیب پہ لٹکا ہوا ہے، اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو اس نے اپنی اس تپتی دھوپ کو، اپنی تپش کو ایک دم سے مدھم کر دیا کہ جہاں پہ اس کا خالق و مالک جب صلیب پہ لٹکا تھا تاکہ اسے برداشت نہ کر رہا تھا، لیکن ہماری خاطر کیا۔ اور لکھا ہے یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا۔ یہ چلانا کوئی درد کا چلانا نہیں تھا، یہ چلانا وہ تھا کہ جس میں یسوع مسیح صاحب کہتا ہے کہ اے خدا تو نے مجھ پہ کیوں رحم کیا۔ جب سورج کی تپش ان کے جسم پہ نہ لگی تو چند لمحوں کے لیے یہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس میں جو نا ایک احسان کیا گیا، کیونکہ سورج ایک دم سے ختم ہوا تو اس کی سزا میں کمی ہو گئی۔ تو یسوع مسیح یہ نہیں تھا چاہتا کہ میری سزا میں ایک ذرا سا بھی کمی کوئی پیش ہو۔ تو یسوع مسیح نے اس موضوع پہ کہا کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یعنی کہ تو نے میری تکلیف میں کیوں کمی کی، جبکہ میں اسی خاطر بنا ہوں، اور جو تیرا پلان ہے اسی پلان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کو پورا کر رہا ہوں۔ تو اس میں کمی کیوں، میرے پہ رحم کیوں کھایا جا رہا ہے؟ جس میں یہ صاف لکھا ہے کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ خداوند اپنے فرزندوں اور آدموں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔
हाँ, खुदा गुनाह से नफरत करता है। और जब खुदा यीशु मसीह सलीब पे थे तो उसने हमारा गुनाह अपने पर लादा था, जिसकी वजह से वो गुनहगार ठहराया गया सिर्फ खुदा की मर्जी में, जबकि उसका कोई गुनाह नहीं था। जब खुदा अपने फर्जंदों को नहीं छोड़ देता तो क्या वो अपने बेटे को छोड़ सकता है? नहीं। जैसे हम बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे जिंदा किताब में वाक़े हैं, जिसमें से दानियल के 3 दोस्तों के बारे में अगर हमने कहीं नहीं पढ़ा कि खुदा ने कभी जिस्मानी तौर पे कभी नजर आया हो या उनसे मिला हो, लेकिन ये वाक़या नबूकदनेस्सर की जबकि में पाया गया कि खुदा उनके साथ था। इसलिए खुदा कभी भी अपने फर्जंदों और कारनों को नहीं छोड़ता। ज़बूर 23 की चौथी आयत में लिखा, ख्वाह मौत के साए की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरा आसा और तेरी लाठी से मुझे असर है। हमें गुनाह से नफरत करनी चाहिए। चनाचे लाज़म है कि हम गुनाह से नफरत करें कि जो अजीज खुदावंद के दुख का बायस है। गुनाह इतनी लानती चीज़ है कि जिसकी खातिर हमारा खुदावंद यीशु मसीह सलीब पे लटकाया गया, और हम इसे ऐसे गुनाह करते हैं कि जैसे खेल की मानते हैं, क्योंकि हमें इस गुनाह से गुरेज करना चाहिए। गुनाह ने मसीह को मसलूब किया और हम इस गुनाह को बहुत प्यार करते हैं, जैसे हम इस गुनाह जैसी लानत को दूर रखना चाहिए। खुदा हमें और आपको इस गुनाह जैसी लानत से दूर रहने की हिम्मत और ताकत दे। खुदा का आप कलाम बड़े को सुने जाने पर बहन रोनिका जुबेर। मसीह में आप सबको सलाम। 5वें कलमे की तलावत मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 28वीं आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए वैसी बरकत हो। आमीन। कौन कौन खुश है आज जब हम ईद दावत में लगने जा रहे हैं, और हमारी खुशी ये है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह को शरीफ पर हमारे लिए कुर्बान करे। आमीन। सो जब ये हमें खुशी है तो हमारे बहन भाई भी आज बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ गुड फ्राइडे खुदा के घर में आते हैं, तो उनको बैठने के लिए जगह चाहिए। तो मेहरबानी से अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, जो बच्चे ये बैठे हुए हैं। तो अगर मैं आसान अल्फाज में बयान करूं तो इसका मतलब है यानी कि किसी चीज़ के ख्वाहिशमंद होना, बेताब या आर्ज़ूमंद होना। उसकी तलावत यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 30वीं आयत कुरान में लिखा है, बस जब यीशु ने मुसलका पिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाव पर जवाब दिए। खुदा के पाकलाम पढ़े और सलाम की बरकत आपका शुक्र और लोगों को नजर आए और लोगों से मिले। ये खुदावंद यीशु मसीह की तमाम हुआ के बाद जो जान दी कि ये तमाम हुआ। पहला इसके 2 वर्ड है, लफ्ज़ है के कहा। इसको कहा, शैतान से कहा, ये तमाम हुआ। चढ़ाई हमें भी नजात को मुमकिन बनाया, और फिर उसके बाद जो एक और वाक्या हुआ वो मत्ती की इंजील 27 बाब की 15वीं 51वीं आयत में मिलता है, और फिर 27 बाब की जो है वो 50वीं आयत में भी हमें इसका जिक्र मिलता है। वहां पर लिखा है कि कब्रें खुल गई, जमीन लरजी और मुकद्दसीन कब्रों में से जी उठे।
जब खुदा यीशु मसीह ने पुकार करता है और उसका पुकारना इस बात की शहादत है कि लोगों की निजात खुदा की तरफ से मुमकिन हो गई है। और तूफान जो है वो बड़ा भौचाल आया, चट्टानें लरज़ी और कब्रें खुल गई और जो है वो मुक़द्दसीन वो जिंदा हुए और बहुत से लोगों ने उन्हें देखा भी। और ये इस बात की निशानी करता है कि खुदा यीशु मसीह की मौत के वसीला से ये उम्मीद ज़ाहिर होती है कि मौत के बाद ज़िंदगी इंसान के लिए मुमकिन है और खुदा इंसान को एक ऐसी ज़िंदगी देना चाहता है जो हमेशा की ज़िंदगी है। और जो एक और वाक़या यहाँ पर पेश आया, 47वीं आयत को पढ़े, लूका ही की इंजील को आगे लिखा हुआ है। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तंजील की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज। ये सूबेदार जो था ये कोई आम शख्स नहीं था। जो रूमी सिपाहियों के दस्ते होते, एक दस्ता जो 4000 लोगों का मुमकिन होता, उसे रीजन कहा जाता, और 4000 के बाद में जो है 400 के ग्रुप में बांटा जाता और उसके बाद जो उन 400 में से थे उनमें से 100 जो लोग होते या 100 सिपाही होते उन पर एक सूबेदार मुकर्रर किया जाता। तो ये सूबेदार जो है ये बड़े पढ़े लिखे लोग होते जो सियासत को, जो जंगोजहद को और जो मजहबी रस्मात को, तमाम चीज़ों को समझते थे और जानते थे। सूबेदार कोई आम शख्स नहीं हुआ करते थे और ये सूबेदार वो था जो इस बात पर मामूर था कि जब किसी को सलीब दी जाती है तो वो उसकी निगरानी करे और सलीब देना उसके रोज़ का मामूल था, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा था। लेकिन उसने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा, बहुत सारे लोगों को जो है वो दुख उठाते हुए देखा है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह को देखा है तो उसके मुंह से निकला कि बेशक ये आदमी क्या था, गुनाह था। और बेशक आज भी हम इस बात को खुदा के कलाम में से जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह वो बेगुनाह था, बेगुनाह है, लेकिन वो मेरी और आपके गुनाहों को लेकर कोई कलगी पर कुर्बान हुआ और उसका कुर्बान होना वो हमारी निजात की निशानदेही है, हमारी निजात पर मोहर करता है। और जब उसका कुर्बान होना हमारी निजात पर मोहर है तो वो पुकार कर कहता है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और सौंपने से मुराद जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, किया गया इब्रानी लफ्ज़, अगर उसके हम मतलब को देखें तो उसका मतलब है किसी के सुपुर्द करना, किसी ऐसे पर जिस पर एतबार किया जाए उसको पास अपनी कोई चीज़ रखवाना, किसी के हवाले करना या अमानतन कोई चीज़ रखवाना। खुदावंद यीशु मसीह के पास इख्तियार है कि वो अपनी रूह खुदा के हाथों में भी सौंपता है और उसे इख्तियार है कि वो 20 दिन मुर्दों में से भी जी उठेगा। और वो कहता है कि लोग मुझे मारेंगे, लोग इब्ने आदम को दुख देंगे, लेकिन वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिसने सलीब दी गई है, जिसने घोड़े मारे गए हैं, वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठेगा। सो खुदा का बेटा यीशु मसीह वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए ज़मीन पर आया, वो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर इस ज़मीन पर आकर उसने जान दी। और जब उसने जान दिया तो वो तकाजा करता है कि